میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور حاضر ہوا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ نوٹس کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، چاہے وہ اردو نثر کا معاملہ ہو یا اردو نظم کا، اردو شاعری سے اصناف شاعری کو لے لیں یا اصناف نثر میں، اس میں اولیت پہلا پوچھا جاتا ہے، جیسے پہلا ڈرامہ نگار کون ہے، پہلا ناول نگار کون ہے، انشائیہ سب سے پہلا کون ہے، یا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ تو میں نے چاہا کہ جو ہے ایک مختصر سا نوٹس جو ہے آپ کو دے دوں کہ اردو ادب میں اولیت جو ہے کن لوگوں کو حاصل ہے۔ جیسا کہ دیکھیے پہلا کوشچن ہے کہ اردو کی پہلی کتاب جس میں داستان اور داستان گو کا نام بتانا ہے، تو اردو کی سب سے پہلی کتاب کا نام ہے سبرس۔ اس کو آپ نوٹ کرتے چلیں، اس میں کہیں کہیں میں بیچ میں اسٹار لگا دوں گا، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کسی ایگزام میں آئے۔ یہ کتاب جو ہے ملا وجہی کی کتاب ہے۔ تو اردو ادب کی پہلی کتاب داستان کی حیثیت سے سبرس مشہور ہے، ملا وجہی رائٹر ہے۔ اردو کا پہلا ناول اور ناول نگار پوچھا جا رہا ہے۔ اردو کا پہلا ناول، تو اردو کا پہلا ناول ہے میرات العروس۔ میرات العروس اور لکھنے والے ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد۔ دوسرا کوشچن ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ کون ہے، افسانہ نگار کون ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ اور افسانہ نگار، تو یہ ہے دنیا کا انمول رتن۔ دنیا کا انمول رتن، لکھنے والے ہیں منشی پریم چند۔ یہ ان کا پہلا افسانہ ہے اور پہلے افسانہ نگار ہے۔ اگلا پوائنٹ کہ اردو کا پہلا ڈرامہ اور ڈرامہ نگار، تو اردو کا پہلا جو ڈرامہ مانا گیا وہ رادھا کنہیا کو مانا گیا ہے، رادھا کنہیا، اور یہ ہیں واجد علی شاہ۔ رہسس کے نام سے نوٹنکیاں جو ہوتی تھی وہ اس میں یہ خود پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ رادھا کنہیا کو اردو کا پہلا ڈرامہ اور ڈرامہ نگار واجد علی شاہ۔ نیکسٹ ہے کہ اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش کہاں ملے تھے، تو اردو انشائیہ کے جو ہے ابتدائی نقوش، یہ کتاب ہے نئے رنگ خیال۔ نئے رنگ خیال یہ تمثیلی کتاب ہے، کئی بار ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے۔ نئے رنگ خیال یہ اس کتاب کی نوعیت تمثیلی ہے، اس میں جو بھی کردار ہے وہ اس میں بامسمہ ہیں، اور یہ کتاب جو ہے نئے رنگ خیال جو ہے اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش نئے رنگ خیال، یہ جو ہے محمد حسین آزاد، محمد حسین آزاد کی کتاب ہے جس میں انشائیہ کے ہمیں نقوش ملتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے اردو کا پہلا خاکہ اور خاکہ نگار۔ خاکے پہ بات ہو رہی ہے، خاکے کو انگلش میں اسکیچ کہتے ہیں، جس میں ہمیں کسی شاعر یا ادیب کی ایک چلتی پھرتی تصویر دکھائی جاتی ہے، اسکیچ کہتے ہیں۔ تو اردو کا پہلا خاکہ جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، یا نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، مرزا فرحت اللہ، مرزا فرحت اللہ کی کتاب۔ تو اس طریقے سے دیکھیے آپ کوئی بھی ایگزام کا سیٹ اٹھا لیں تو ان ٹاپک پر سبھی پر پوچھا جاتا ہے۔ جیسے یہ سفر نامے کی اگر بات کریں تو سب سے پہلا سفر نامہ کب لکھا گیا، یا پہلی تنقید کی کتاب کون ہے، یا پہلا تنقید نگار کون ہے، اس طرح کے سوالات امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اردو کی پہلی سوانح عمری اور سوانح نگار۔ تو یہ جو ہے ذات ہے الطیب کی، الطاف حسین حالی کی۔ الطاف حسین حالی یہ جو ہے پہلے سوانح نگار ہیں، اور حیات سعدی کو جو ہے حیات سعدی اس کا صحیح آنسر ہوگا کہ اردو کی پہلی سوانح عمری حیات
सादी है, सवाने निगार अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल दूसरा है कि उर्दू शुअरा का पहला तस्करा और तस्करा निगार। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। जब आपसे पूछा जाए कि उर्दू शुअरा का पहला तस्करा कौन है, तब आप तुरंत जो है आंसर जो है निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा ये उर्दू अदब का सबसे पहला तस्करे की किताब है। मीर तकी मीर ने निकातुश्शुअरा। लेकिन यहीं पे ये बात याद रखें कि ये फ़ारसी ज़बान में है। उर्दू शुअरा का तस्करा फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। जो सबसे पहला तस्करा माना जाता है वो निकातुश्शुअरा है। दूसरा क्वेश्चन कि उर्दू शुअरा का पहला तस्करा हो लेकिन उर्दू ज़बान में और तस्करा निगार का नाम बताएं। तो ये उर्दू में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है गुलशन हिंद, ये उर्दू का पहला तस्करा है उर्दू शुअरा का उर्दू ज़बान में, गुलशन हिंद। और लिखने वाले हैं मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा है। तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। मिर्ज़ा अली का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो उर्दू का पहला तस्करा उर्दू ज़बान में अगर पूछा जाए तो सही आंसर गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। अगला क्वेश्चन कि उर्दू शायरी की पहली तारीख या अदबी मुअर्रिख। तो तारीख की किताब पूछी जा रही है। तो आब हयात आप जानते हैं 1880 में शाये हुई थी और इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये किताब है। अगला है उर्दू का पहला शायर, गज़ल की हैसियत से पूछा गया है। तो उर्दू का पहला शायर जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, ये हमने स्टार लगा दिया, ये आप देखेंगे बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है ना। तो ये है कुली कुतुब शाह, दक्कनी शुअरा है कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला है शुमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर दीवान शायर कौन है। तो ये तो दक्कन की बात हुई, अब शुमाली हिंद यानी दिल्ली की बात करेंगे। तो इसमें फ़ाइज़ दहलवी को शुमाली हिंद का पहला शायर दीवान शायर माना गया है। उर्दू की पहली मसनवी और मसनवी निगार का नाम। तो उर्दू की पहली मसनवी जो है कदम राव को माना गया है। कदम राव पदुम राव याद रखिएगा। और ये जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी की किताब है। अगला है कि उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार कौन है। तो उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार जो है सौदा को तस्लीम किया गया है। उर्दू का पहला मरसिया निगार, ये जो है बिल्कुल जो है असनाफ़ शायरी का मैंने आपको बताया, असनाफ़ शायरी हो नस्र का हो सबका पहला पूछा जाता है। तो उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बियाबानी इसको माना जाता है। आइए देखते हैं इधर उर्दू का हिज्व गोई का मूजिब। उर्दू हिज्व गोई का मूजिब कौन है। तो हिज्व गोई में जो है सौदा को यदुल्लाह हासिल की। हिज्व गोई में सौदा का मकाम बुलंद है। इसका हिज्व गोई में सौदा, अक्सर के इम्तहानात में सौदा का नाम पूछा जाता है। तो इसको आप मोहम्मद रफ़ी नाम था, असल नाम है। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला तनकीद निगार और तनकीदी किताब
तो इसमें हम देखते हैं उर्दू का पहला तनकीद निगार। तो उर्दू अदब की जो पहली तनकीदी किताब मानी गई है वो है मुक़द्दिमा शेर व शायरी। मुक़द्दिमा शेर व शायरी तनकीद की पहली किताब 1893 का जो है संदेशात है, याद रखिएगा। और ये किताब है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अगला है उर्दू की पहली नज़्म और नज़्म निगार का नाम। तो उर्दू की पहली नज़्म जो है पिछले किसी सेट में हमने इसका सोल्यूशन दिया था, चक्की नामा, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की नज़्म है। दूसरा है पहला साहिब फ़िक्र शायर। सबसे पहला जो है साहिब फ़िक्र शायर जो है गालिब को माना गया है, गालिब। तो आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर गालिब। दूसरा है जदीद उर्दू नस्र का मूजिद कौन है। तो जदीद उर्दू नस्र की जब बात आएगी तो ये 4 से क्वेश्चन उठाएंगे। मीर अमन की बात है। मीर अमन को जो इन्होंने मारफतुल आला किताब बागो बहार लिखी है, उर्दू का सबसे पहला जदीद उर्दू नस्र का मूजिद मीर अमन को। उर्दू शायरी का मूजिद अगर पूछा जाए तो उर्दू शायरी का जो मूजिद है वो जदीद उर्दू शायरी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी हाली और आज़ाद को जदीद उर्दू शायरी का मूजिद जाना जाता है। पहले सूफ़ी शायर कौन है। तो पहले सूफ़ी शायर जो ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द ये पहले जो है सूफ़ी शायर है। पहला मज़मून निगार कौन है। मज़मून निगार की जब बात होगी सर सैयद का नाम सबसे पहले आएगा। पहला मज़मून निगार। सफ़रनामे का आगाज़, मतलब पहला सफ़रनामा पूछा जा रहा है तो ये है यूसुफ कंबलपोश। यूसुफ कंबलपोश ये पहले सफ़रनामे का आगाज़ इसे है। अजायबात फ़रंग का नाम है। अजायबात फ़रंग ये जो है पहला सफ़रनामे का आगाज़ जो है इसी पहला सफ़रनामा है अजायबात फ़रंग। इसके लिखने वाले सफ़रनामा निगार यूसुफ कंबलपोश। खतूत निगारी पर जो क्वेश्चन है, खतूत निगारी का आगाज़ जो है ये गालिब के खतूत से लिया जाता है। गालिब का पहला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऊद हिंदी। ये ऊद हिंदी इनके खतूत का पहला मजमूआ है। खतूत निगारी का आगाज़ से लिया जाता है। दूसरा लास्ट हम लोग पहले ड्रामा निगार कौन है। तो अमानत लखनवी को माना गया है। अमानत लखनवी, इनका ड्रामा इंद्र सभा को जो है पहला ड्रामा माना गया है। पहले तनकीद निगार, अभी ऊपर आया था हमने बताया तनकीद की पहली किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तो ये जो है पहले तनकीद निगार जो है आपकी हो जाएगी अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली इनकी जो किताब का नाम अभी हमने आपको बताया था मुक़द्दिमा शेर व शायरी। मुक़द्दिमा शेर व शायरी। तो आप इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिएगा, पहला बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको अव्वलियत उर्दू अदब में अव्वलियत पर ये बहुत अच्छा नोट्स है। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा और गुजारिश ये है कि इस चैनल को आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।